Good evening, everyone. I am Tanvi Sondi. I know you had to wait for 10 more minutes, but we were waiting for some of our colleagues to really join in who were facing some difficulty in logging in. Welcome to the first session of Ultratech Parivar. I'm sure all of you are waiting to see our speaker and you don't want to see any one of us. So just 5 and 8 minutes more and I think we will have our speaker there and you can interact with the speaker. नॉर्मली हम चाहते तो हम सब एक साथ मिलते कोई एक बॉलरूम में और हम इंटरैक्ट करते, हमारी इच्छा तो यही थी, बट एनीवेज वी हैव ऑल कनेक्टेड डिजिटली एंड ये डिजिटल का एक और एडवांटेज ये है कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे पास 6,000 लॉगिन्स है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट आई बिलीव अराउंड 10,000 पीपल आर वाचिंग अस लाइव राइट नाउ एज वी स्पीक. And some I believe are facing some issues in joining in, and I'm hoping that they should join in another 5-8 minutes before we have our speaker live. So I hope that they will also join in. So it will be a big, large Ultratech Parivar watching this entire session of our speaker Kapil Dev together. And who is Ultratech Parivar? हमने ये नाम क्यों दिया है? Ultratech Parivar हम सब है. हमारे एम्प्लॉइज है, हमारे चैनल पार्टनर्स है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, हम सब मिला के एक अल्ट्राटेक परिवार होते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी थॉट दैट इन दिस मोमेंट ये सिचुएशन जिसमें हम सब है, अगर हम सब साथ है तो हम सब में ताकत है. इसीलिए हम सब साथ है आज टुगेदर आपके लिए और आपके साथ हम यहाँ पे आए हैं. जस्ट बिफोर वी बिगिन कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स. आई एम श्योर आपके सामने चाय पकौड़े बिस्किट्स जो भी है वो तो होंगे ही. उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी देख रही हूँ मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं. लेकिन जो लोगों ने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, आपके राइट हैंड साइड पे एक चैट बॉक्स है जिसके ऊपर आप आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं. एंड आपकी जो स्क्रीन है आप उसको भी बड़ा कर सकते हैं. यू कैन मेक इट अ फुल स्क्रीन इफ यू वांट. दैट इज आल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल ऑन योर राइट हैंड साइड इफ यू वांट टू ब्लो अप द स्क्रीन व्हेन कपिल जॉइन्स इन. And before we begin the session, we have one special video for all of you. Some of you would have seen that video during our 100 million ton. And some of you who haven't seen it, I think it is a great video. Maybe this day had to come and that's where that video was prepared. So we will play that video for you. And then we will welcome our Chief Marketing Officer, Mr. Vivek Agarwal. So can we have the video, please? The year was 1983. India had made history. It was the time when we as a nation started believing that anything is possible. Around the same time, we took our first step in the transformational journey of India. We laid down the foundation of Rajshri and Vikram Cement Works to help every Indian realize his dream of owning a home. It was with this purpose that we started our journey. In 1988, the Birla White Cement plant was commissioned. In 1998, we built India's first RMC plant to transform the country's landscape at speed. Our common mission brought our cement businesses together in 1998. With the acquisition of L&T Cement, we created our new identity in 2004. In 2010, we acquired Star Cement. To keep pace with the demands of a rapidly growing nation, we expanded our capacity organically and inorganically. Along this journey, we laid down the tracks of progress and built the gateways to a new India. We connected villages to cities and made urban commute faster and safer. From naval bases to world-class ports, and from water reservoirs to stadiums, together we've made it all happen. We've built one of the largest logistics networks in the country and have invested in skill development of masons across India, including women masons. Ultratech's initiative, India Next, was launched 4 years ago to engage with the brightest minds in engineering and architecture community to build a more meaningful future for India. The acquisition of JP Cement units established our presence in Himachal Pradesh, Central India and Coastal Andhra Pradesh, making us the only pan-India cement player and a leader in all zones.
We continued our successful organic and inorganic growth with the commissioning of Dhar Cement Works, the acquisition of Binani Cement, and the merger of Century Cement. With this, we crossed an important milestone, adding an unprecedented 47 million tons in just 3 years. This addition is more than the capacity of the next largest player in India. Today, we are at the threshold of yet another exciting chapter of our and the nation's growth. Our vision of being the leader in building solutions has driven us to build the India of tomorrow. What started as a single plant 36 years ago has grown into 52 cement plants and 100 plus RMC plants. Today, we've become one of India's most valuable brands, with a portfolio of 56 product offerings, catering to 90,000 plus channel partners across the country. The trust that you have reposed in us has helped us reach the spectacular milestone of 100 million tons plus capacity in 2019. We continue to anticipate our customers' changing needs and provide innovative products and solutions. Because we believe that whether you are building your home or an iconic infrastructure, it is not just a structure, but your badge of reputation. And hence you would want only the best. India's #1 cement, Ultratech, is always with you on the path of progress. नमस्कार अल्ट्राटेक परिवार, अल्ट्राटेक फैमिली, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बढ़िया वीडियो था इस समय। आई विश कि इस समय हम सब लोग अगर साथ साथ एक बैंक्वेट हॉल में होते तो क्या मजा आता है, एक साथ हम एक दूसरे को देख पाते, समझ पाते। लेकिन जो एक अल्ट्राटेक हम सबकी एक जो कि इनविंसिबल स्पिरिट है कि ठीक है लॉकडाउन है तो क्या हुआ, इसी बहाने मिलते हैं, तो लेट्स एंजॉय दिस जूम कॉल and it's good to be with all of you together. एक मैं अभी जब वीडियो देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ, दिस वीडियो हम लोगों ने शूट किया था करीब 2 साल पहले, जब हम लोगों ने 100 मिलियन टन के रूप में एक माइलस्टोन अचीव किया था। लेकिन आज जब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, टुडे एज वी स्पीक वी आर टुडे एट ओवर 116 मिलियन टन, एंड योर कंपनी, योर अल्ट्राटेक, आवर अल्ट्राटेक विल बी adding additional 20 million ton, and that means 2 साल बाद after 2 years will be at 136 million tons. So cheers and kudos to all of you guys. I can only clap from here, presuming आप सब देख रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे होंगे इसको लेके। लेकिन इसमें देखिए एक अच्छी बात देखिए, मजे की बात देखिए, आपने शायद वीडियो में देखा होगा पहली क्लिपिंग में, जिसमें दिखाया गया था कि 1983 में किस खूबसूरती के साथ अंडर द कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव हम लोगों ने, इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता। और ये भी एक शेयर कोइंसिडेंस है कि 1983 में हम लोगों की एक आधारशिला लगी सीमेंट प्लांट लगने की, विक्रम सीमेंट, राजेश सीमेंट में। सो कई चीजें ऐसी हैं कि जो अपने आप में एक सक्सेस पाथ पे जा रही हैं। एंड सबसे पहले फॉर ऑल दिस सक्सेस दैट वी हैव अचीव्ड, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू who has been a robust partner. आपने जो robustness अपने पार्टनरशिप हमारे साथ करी है, ये उसका प्रमाण है, ये उसका नतीजा है, ये उसका रिजल्ट है, that today we are walking at 100 million ton plus capacity. So thank you all very much once again. अल्ट्राटेक परिवार, जैसे कि हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं, so welcome to this show. और जैसे कि परिवार में एक होता है, जो परिवार वो तभी कहला जाता है when we are together forever. So each one of you, आप सब are extremely important for your family, for Ultratech and for the country. Therefore, please keep safe, please take care of your health, and our best wishes are with you. तो ये जो Ultratech परिवार, what Tanvi just said a while ago, जो हम ये सीरीज लेके आए हैं, ये एक तरीके से दिल से दिल तक हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। It's heart to heart conversation series. And we'll be with you every Friday for next 5 Fridays at 5 PM. And अगर आप पूछे कि चीज क्या है, हमने क्यों बनाई, तो हमारे हिसाब से ये एक इंस्पिरेशनल सीरीज है।
और इसमें we are going to focus on typically 4 broad themes. The first theme, which is extremely important for all of us, is courage, हौसला. The second is the power of being together. साथ साथ कोई भी चुनौती आएगी, साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. We can fight it out. Positivity, बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबके लिए पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, और एक कमिटमेंट के साथ काम करना, जिसको लोग बोलते हैं दृढ़ निश्चय. And the other element is resilience, जिसको बोला जाता है bounce back. और bounce back मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक फैमिली की हमारी एक बहुत an element of pride है कि लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था और हम सब को लग रहा था ये कहाँ क्या हो रहा है, हम सब लोगों ने मिलकर पूरी एहतियात बरती. एंड देन जुलाई के महीने में जब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, द पावर विद विच वी ऑल बाउंस बैक was amazing, and compliments to all of you for that. ये जो initiative है हमारा, this is also therefore to motivate and inspire all of us, inspire you, inspire me, inspire us as Ultratech family. और ये अपने आप में एक हम सबके लिए एक भरोसा, एक conviction है कि together we can, और together हम आगे बढ़ेंगे and we'll bounce back once again उसी खूबसूरती के साथ, जिस खूबसूरती के साथ the way we bounced back last year. We took a vertical takeoff. Normally ऐसे विपदा आने के बाद after such tragic instances the recovery कहते हैं कि slowly होती है, but the way we bounced back, the way you bounced back, the way together we bounced back was absolutely amazing, incredible. And that this reminds me, जो कहा जाता है, tough times don't last, tough people. तो ये जो कठिन परिस्थिति जैसे खूबसूरती से निकले थे, हम दोबारा निकलेंगे. और इसमें मुझे ध्यान आता है कि राज कपूर साहब की एक मूवी थी जिसमें कहा गया था कि the show must go on. So that's what we believe in. And for next 5 weeks, every Friday 5 p.m, please join us. Now for today's the first series, it's a pleasure for me to introduce to Mr. Kapil Dev. As a Kapil does not need any introduction, but फिर भी मैं liberty लेता हूँ उनके बारे में कुछ कहने का. Kapil Dev is one of the greatest all-rounders who was born in Chandigarh. जैसा आप जानते हैं, he was known as Haryana Hurricane. He has been praised for his amazing captainship and for holding a record for the most test match wickets. Batting के बारे में हम जानते हैं, wickets from 94 to 1999. Being a right arm bowler, he is known for his potent outswing and graceful action. Kapil Dev was naturally an aggressive player who often helped the Indian cricket team during difficult situations. He has played 131 tests and never missed a test match due to injury, despite being an all-rounder, and has been never run out. It's an amazing feat. Kapil Dev has received many prestigious awards, including a Padma Shri Award, Arjuna Award, and Padma Bhushan. He has also been awarded as Indian Cricketer of the Century by Wisden in the year 2002. He has also released an autobiography in 2004, Straight from the Heart. A versatile cricketer under captaincy of whom India has won its first ever World Cup title in 1983. And 1983 year is special for our Ultratech 2, what we saw a while ago, because we too were born and when we started our journey not to become the 3rd largest cement company in the world. First World Cup victory जो हमारी हुई थी इंग्लैंड में जो हुई थी, that's an amazing thing, and I remember fondly. मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि जो हमारे दोस्त फ्रेंड्स हमारे जो इंग्लैंड में थे और जो उस समय जिन्होंने मैच देखा था, उन्होंने कहा था कि this instilled in them a sense of pride. इंग्लैंड में क्रिकेट जीतना, वो भी वर्ल्ड कप जीतना, instilled in all of them a sense of pride, self esteem, जो कि कुछ उस समय इंडियंस में काफी कई बार कम रहा करता था कि लगता था कि शायद हम सेकंड रेस वाले हैं, etc etc, but that changed everything. And most of us have seen Lagan, and I think Lagan was a true inspiration that they took from nothing but this success what Kapil got to us as a country.
Also, on a personal note, I have listened Kapil on quite a few occasions, and I must say that he is one of the most authentic and inspiring speakers. He is high on humility and has a great sense of humor, and a charismatic leader he is. Without wasting much time, with no further ado, let me invite Kapil Dev for our first UltraTech Parivar Speaker Series session today, and urge you all to enjoy this session along with your family. So over to Kapil. Welcome, Kapil. Good to have you with us. नमस्कार विवेक जी, रुलाओगे क्या? इतना कुछ कह दिया, समझ भी नहीं आता क्या बोलूं. I always feel sometime you praise too much, you don't know what to say about that. कोई भी खिलाड़ी, कोई भी इंसान रिवॉर्ड और अवार्ड के लिए नहीं करता. You have a passion to do things. The passion is the key word in my life. But first of all, welcome to all the UltraTech family. Such a big family. It's not a small family. Family इकट्ठे करते करते वक्त लगता है. And I want to say to everybody, not the owners, everybody who make the family, namaskar aap sabko, good evening. And I come to know, I believe you have such a number. It's I don't know what to say. As you said, Vivek ji, I am also believe that. I hope मैं सबसे गले मिल सकता, सबसे मिलके एक हक कर सकता, लेकिन need of the hour is stay safe, stay with little bit of difference. पहली बार होगा हमारी संस्कृति में हम कहते हैं थोड़ा दूर रहो, दूर रहने से सेफ्टी है. इसका हमें पालन करना होगा क्योंकि वक्त बदलता जाता है, समय बदलता है और बदलते समय में हमें सबको बदलना होता है. इसलिए आपका परिवार, हमारा परिवार, अल्ट्राटेक का परिवार बहुत बड़ा हो गया. हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं. वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Never give up the spirit. Spirit is the most important thing. The passion is the key. I always say to everybody, whoever I meet, I said, मुझे कुछ पता नहीं था जिंदगी में था, एक पैशन था मुझे, कि मुझे जनून था, जनून, पैशन, जनून, कि I want to do something. I want to do something for myself. मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने लिए करेंगे तो आपकी सोसाइटी के लिए रहेगा. If you look after yourself, you look after the society also. जो पुराने समय के थॉट प्रोसेस थे वो थोड़े से अलग थे. वो कहते थे if you have one chapati, give half to the other person and you eat half. I used to say no, let me eat full, I'll get 5 more for you people. ये ना हो कि आप भी भूखे रहें और मैं भी भूखा रहूं. तो लाइफ चेंज होती जाती है. जो 100 साल पहले सोचते थे वो आज नहीं सोचते. हम जब क्रिकेट भी 83 में खेला करते थे, हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे. सबसे बड़ी एक जो चीज थी जो हम भूलते जा रहे हैं, जो ये कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर, इससे बड़ा कंप्यूटर दुनिया में कोई नहीं बना सकता. नेवर लेट इट गो. रिमेंबर दैट दिस कंप्यूटर कैन टेक यू far ahead in your life. So I'll come back to, this never give up ever. Science says एक आदमी अगर जल गया है, if you are burned 70% and you have no passion to live anymore, you will die. अगर आप 70% आप बर्न हो, आग लग जाती है और आप में विल है, पैशन है जिंदा रहने की, तो you can stay alive. But only 30% if you are burned and you die within yourself, you are dead. आप जिंदा नहीं रह सकते. तो इसलिए कहते हैं कि वो जो जनून है ना हमारे ह्यूमन बीइंग में, वो होना बहुत जरूरी है. जिसका जनून, जिसका पैशन खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. 83 टीम कोई बड़ी टीम नहीं था. मैं अभी भी कहता हूं, जो आज की टीम है बहुत बड़ी है. हम बड़ी नहीं थी, पर हमारा जनून बहुत बड़ा था, हमारा पैशन बहुत बड़ा था, रियलाइजेशन बहुत बड़ी थी. इसलिए कि जब हमने खेलना शुरू किया, सिर्फ मेरा एज ए कैप्टन एक ही काम था कि मेक देम रियलाइज वी आर गुड इनफ, वी आर गुड इनफ and we are good enough. I think that took little bit of time, and after that I wasn't even captain of the team.
team become a captain. That's how I played my cricket. I always say एक बहुत अच्छा हिंदी में I think पूरे इंडिया से लोग हैं. Some of the South people may not understand, but I'll try to translate that and try to go close to what I'm trying to say. किसी ने कहा, बहुत महान पुरुष ने कहा कि जो ये खूबसूरत रास्ता है, पता करो इसकी मंजिल कहाँ है. Find out this beautiful path, find out what is the destination is there. And somebody like me said, if the destination is beautiful, why you bother about the path? हमें रास्ते का डर नहीं है, डेस्टिनेशन क्या है. अगर मेरी डेस्टिनेशन हिंदुस्तान को खेलने की है, तो फिर रास्ते की चिंता क्यों करनी, वो तो आएगी मुश्किल. लोग कहते हैं कि हम ट्रेन पे गए, बसेस में गए, पैदल गए, साइकिल पे बैठ के गए. वो जर्नी थी, पर वो बड़ी खूबसूरत जर्नी थी, क्योंकि जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी ना, वो बड़ी खूबसूरत थी, टू प्ले फॉर योर कंट्री. सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर ऑल द पीपल who are listening today, I would say you should have that destination in your mind कि एक दिन इस कंपनी में मेरे को CEO बनना है. ऐसी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए. और उसके लिए क्या है, keep your eyes and ears open all the time. When I was playing for my country in the beginning, somebody said, a wise cricketer, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं. आपके माता पिता करते हैं, आपके टीचर करते हैं, आपके फ्रेंड्स आके करते हैं. और उसमें था, if you want to be successful, keep your eyes and ears open while sleeping also. तो मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर थी. मैंने कहा ये क्या कह रहा है, सो के कौन आंखें और कान खोल के रख सकता है. तो उसने उसी समय मेरे को बोला, जब मैं थोड़ा सा हैरानी से देखा, तो he said that don't go literally what I said, understand the meaning of that. If keep your eyes and ears open while you're playing, you might be one day captain. So keep seeing what's good happening, what's bad happening. What's good's happening, keep on taking that. There is two type of people. एक देखते हैं कि इस इंसान ने क्या खराब किया है, कभी मौका आएगा इसको बताऊंगा. और एक ऐसा इंसान होता है मेरे जैसा, मैं जो सोचता हूँ कि इसमें क्या अच्छाई है जो मैं ले सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ. So two type of people. One who always look for the negative side. Second, who look for the positive. I am the person, even peon or my driver, give me a good tip, I will keep it and I'll respect him. And that's how I, ultimately played my cricket. Come from a very small town, Chandigarh. Not now. अभी नहीं है. अगर किसी को अब मैं बोल दूं ना चंडीगढ़ छोटा सा टाउन है, मेरे को मारेंगे वो उठा के. वो बोलेंगे चंडीगढ़ इतना बड़ा यूनियन टेरिटरी है. तो जब मैं वहां से निकल के आया था, अपने घर की दहलीज पार करके मैं क्रिकेट के एरिना में आया था, मुझे यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने आप को कहूं कि मैंने कुछ किया है जिंदगी में, दूसरों को नहीं. डोंट, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. And for that, only one thing I learned, never lie to myself. मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहता. और जब भी आप काम करते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. जब प्रैक्टिस होती थी ना, थोड़ा मैं ज्यादा जा रहा हूँ, तन्वी जी थोड़ा बात कर सकता हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल. नहीं विवेक जी, कहीं पता चले कि मैं लेक्चरर नहीं हूँ, मैं तो दोस्त हूँ. आई डोंट लाइक टू बी अ लेक्चरर. तो मुझे ऑलवेज लगता है कि हाँ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट मेरे को कुछ पॉइंट बताने थे. आज मौका मिला है क्योंकि बड़े दिन हो गए अकेले में बैठे, प्याज काटते हुए, कपड़े प्रेस करते हुए, जूते पॉलिश करते हुए, कुछ करने को नहीं. आज बोलने को मौका मिला है, तो आज रुक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं. तो इसलिए मैं कह रहा हूं तन्वी जी, विवेक जी, मुझे मौका है ना बात करने का? एकदम आराम से बात करिए. हाँ, तो मेरे पास कुछ पॉइंट है, मैंने पॉइंट निकाले हैं और उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ. उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, क्योंकि मजा और सीखने को कब मिलता है, जब आप एक दूसरे से बात करते हो. जब मैं सिर्फ बात करता रहूं तो मैं सीख नहीं सकता.
लेकिन जब मेरे से कोई बात करता है तो मेरे को सीखने का मौका मिलता है। इस तरह की सोच मैं रखता हूं और मैं हमेशा कहता था द स्पिरिट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी आप डाई नहीं होने दो, चाहे जिस मर्जी उम्र में पहुंचो। उम्र कुछ लोग कहते हैं नंबर है, हाँ नंबर तो है, एक ना एक दिन तो हमने जाना ही है, लेकिन जब तक हैं क्या वो मजा कर सकते हैं। तो मैं अपनी टीम को कहा करता था अक्सर प्रैक्टिस करेंगे 2 बजे, और कभी भी कोई लड़का पूछ लेना कितने बजे तक करनी है प्रैक्टिस, तो मैं उसको यही सोचता था इसका इंटरेस्ट ही नहीं है गेम में, ये तो एंड सोच रहा है। मजे तो करो, जितनी देर मजे करेंगे और जब थक जाएंगे तो खत्म कर देंगे प्रैक्टिस। सो इट्स अ थॉट प्रोसेस। देयर इज व्हेन यू आर एंजॉयिंग, व्हेन यू आर यंग मैन, व्हेन यू आर टेकिंग योर गर्लफ्रेंड आउट, डू यू थिंक एवर कहते थे कि जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जाए? नहीं ना। तो हम कहते थे क्रिकेट में क्रिकेट जल्दी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। सेम व्हेन यू कम टू द ऑफिस, नेवर ट्राई टू से ऑफिस जल्दी जल्दी टाइम 5 बजे और मैं वापस जाऊं। फिर आपका थॉट प्रोसेस बदल गया है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अल्ट्राटेक फैमिली के थॉट प्रोसेस क्या है। मेरे को भी पानी पीना है तन्वी जी, मेरे को कॉफी भी पीनी है। वो भिजवाते हैं सर कहीं से। नहीं, मैं अपने आप कर देता हूँ, बट मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। मेरे को लगता है कि ये कब ये प्रॉब्लम खत्म होगी, कब हम मिल सकेंगे, बट उसको मिलने के लिए हमने खुद ही ठीक करना है। कोई किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए कि कोई दवाई निकलेगी या कुछ कोई आके गवर्नमेंट करेगी। क्या हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? क्या आप अपनी कंपनी में अपने लोगों को ठीक रख सकते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत चाहने वाले नहीं रहे होंगे इस दुनिया में, उनका समय इतना आ गया था। हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हम हैं, अभी तक भी हम हैं। इसका यू शुड बी फील प्राउड। सो मेनी डिफिकल्ट थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, गॉन, you are still lucky you are survived. So for that I would say spirit should be there. And again I come back to the 1983 जहां पर टॉपिक मैंने छोड़ा कि जब हम खेलते होते थे, कोई पूछ लेता था ना कि कितने बजे तक प्रैक्टिस करनी है, मुझे लगता था इसका इंटरेस्ट शाम को कुछ और है, इसको जल्दी होटल जाना है, किसी ना किसी को टाइम दिया होगा। तो मैं ये सोचता था कि जो पैशन होता है जिंदगी में, वो प्यार से बड़ा पैशन जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं है। और क्रिकेट टीम को कहता था जो वो पैशन है ना, शाम को आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना है, उसका 50% भी पैशन आप मैदान में ले आओ ना, या आप अपने ऑफिस में ले आओ, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। 50%। जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड को आउट बाहर लेके जाना है ना, यू विल डू एनीथिंग टू अचीव दैट। इज दैट राइट और रॉन्ग? विवेक जी, आप भी 18-16 साल में रहे हैं। 100% बहुत ही सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो जो पैशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस उम्र में होते हो, आपको बाहर जाना है, क्या वो आप अपने ऑफिस में ला सकते हैं? जब आप ऑफिस में आए हैं, और उसके लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आप ब्लिंकर्स, वो कहते हैं ना, ब्लिंकर्स डाल के ऑफिस में ही है, बट उसको सिर्फ तभी पूरा कर सकते हो अगर आप अपनी फैमिली को ठीक रख सको। अगर फैमिली डिस्टर्ब है तो आप ऑफिस में काम नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। मेरे को कोई प्लेयर था, उसकी गर्लफ्रेंड आना चाहती थी ग्राउंड पे, और उसका ध्यान नेचुरली, जो मैंने बोला है, जो पैशन, प्यार का पैशन है, वो गेम से ज्यादा है। तो मैंने, कैप्टन के पास कुछ फैसिलिटीज ज्यादा होती है कि टिकट भी मिल जाते हैं, पासेस भी मिल जाते हैं। मेरे को पता किया तो उसने बोला इसकी गर्लफ्रेंड आ रही है, इसके पास पास नहीं है क्रिकेटर के पास। आई सेड ओके, मैं इंतजाम कर दूंगा। तो मैंने बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड को अंदर लाओ, मैच देखने दो, उसको बिठाओ। बिठाने के बाद उसको बोला, प्लेयर को बोला कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, क्या अब तुम दिमाग इधर लगा सकते हो क्रिकेट के मैदान में, टेस्ट मैच में?
तो इस तरह की चीजें कैप्टन को करनी पड़ती है कभी कभी कि यार हाँ, फोकस योरसेल्फ. एंड वंस ही कम टू नो माय गर्लफ्रेंड इज देयर, क्योंकि शाम को तो गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, उसके बाद उसका खेलने का तरीका बदल गया. इसलिए एज ए कंपनी, विवेक जी, आपको या बाकी लोगों को ये भी देखना है कि जितनी भी आपका परिवार है, उनका परिवार भी पीछे से बिल्कुल सेफ और साउंड हो. अगर किसी के डिवोर्स चल रहा है या लड़ाई चल रही है, वो ऑफिस में क्या कैसे इंटरेस्ट दिखाएगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मी कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू वरी अबाउट their families, their girlfriend, mother, sister. I hope they are safe. If they are safe, they will give 200% on the ground. It's not captaincy, you give me all the result. No, what as a captain you can give back, those type of thing. तन्वी जी, अब तो मैं बस कर सकता हूँ ना? आपकी जैसी मर्जी. क्वेश्चंस बहुत है वैसे आपके लिए. तो ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन में ही मैं फिर मजा लूंगा. अब आपको देता हूँ 1-2 मिनट और बात करता हूँ. उसके बाद आप बोलिए जिससे भी क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं. लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि आपकी फैमिली के बारे में, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप काम करते हो, यू वांट टू गो इन डिटेल व्हाट दे डू, हाउ दे डू, वेयर दे कम फ्रॉम एंड वेयर दे रीच, हाउ मेनी एडवर्टाइजमेंट दे डन. आई थिंक योर कंपनी डन फेयरली वेल, एंड आई एम टुडे honestly from bottom of my heart, I'm very touched how big your family is and you are taking care of everybody, and today given me opportunity to talk or try to conversation with everybody. बड़ा अच्छा लग रहा है. विवेक जी, आप पूछ सकते हैं, तन्वी जी आप पूछ सकते हैं, या किसी और को पूछना है, प्लीज लेट्स एंजॉय नाउ. Yeah, sure. So Vivek, you want to ask some questions? Then I'll go ahead because there are a lot of questions from the audience. Yeah, let me ask 1 or 2 quick questions कपिल जी से. कपिल, ये बताइए, आपने ये कहा जाता है कि कैप्टेंसी इज अ हाई प्रेशर जॉब, और ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं व्हेन अ कैप्टन डिसाइड्स नॉट टू बी अ प्लेइंग कैप्टन व्हाइल बीइंग इन द टीम बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट प्रेशर मोड. लेकिन अगर हम 1983 का देखें, यू वर अ कैप्टन, you were an all-rounder. टीम थोड़ी शुरू में हिलने लगी थी, but you gave a knocking of 175 solid runs and not out. आपने विवियन रिचर्ड का कैच लिया था, जो मैं कई लोगों ने देखा है टीवी पे, और वो भी आपने पीछे उल्टे दौड़ते हुए कैच लिया था, which I'm told is not a right way of taking a catch, but you took a catch so passionately. You took the catch, and कैच देखने के बाद आपके चेहरे पे कोई चिकन नहीं थी. ऐसा लगा कि ये तो बस ठीक है, पकड़ लिया, बॉल आई हाथ में, पकड़ ली मैंने. तो मैं जानना आपसे चाहता हूँ, ये कहाँ से आप इतनी रोबस्ट मेंटल फिटनेस लेके आते हैं? इसके पीछे राज क्या है? और पहले तो इतने कोच हुआ नहीं करते थे आपके पास. देखिए, बड़ी अच्छी एक स्टोरी बताता हूँ. हम बिशन सिंह बेदी जो सीनियर है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो उनको बोला, ये जो आज के स्पिनर हैं, ये विकेट लेते हैं और भागते जाते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, और पंपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो कहते इनको यकीन नहीं होता कि इन्होंने विकेट ले लिया. भाई, जब तुम बॉलर हो तो ये तुम्हारा काम है विकेट लेना, उसमें ज्यादा खुश होने की क्या जरूरत है? ये थोड़ा कि आपको प्रसाद मिला है, आप मेहनत कर रहे हो, आप टीम में सिलेक्ट हुए एज ए बॉलर. सो जब मैं फील्डर हूं तो मेरा वो काम है कैच करना. उसके बाद क्या करना, अगर मैं ना कैच करूंगा तो वो मेरी कोई गाली है ना, वो मेरी प्रैक्टिस का रिजल्ट सामने आ रहा है. तो इसलिए खुश जरूर होते हैं, लेकिन वो आपका काम है कैच करना, आपका काम है रन बनाना, आपका काम है विकेट लेना. लेकिन आज के क्रिकेटर है, वो थोड़ा सा शो ऑफ भी ज्यादा कर लेते हैं, और उनको पता है कि 30-35 कैमरा लगे हैं, और यहाँ के घर में जाके पूछेंगे, वो बड़ा मजा आया, आपका वो एक्शन हुआ था. और मैं हमेशा कहता हूं कि वो आपका काम है, आपको कैच पकड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
तो उसमें उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आपने अपनी टीम का काम कर लिया, वो बहुत बढ़िया है। अक्सर आजकल देखेंगे आप, कोई एक विकेट लेता है तो ऐसे जंप मारते हैं तो मुझे तो डर ही लगता है कि इनका बाजू ना निकल जाए। वो ऐसे पॉपिंग करते हैं ऐसे जोर जोर से। भाई, यू आर ए बॉलर, आपने विकेट लेनी है तो फिर ज्यादा खुश होने की क्या जरूरत है। ये हमारा थॉट प्रोसेस था। No, no, brilliant, brilliant said. और बिशन सिंह बेदी साहब का जब आपने नाम लिया तो ध्यान आया कि उस समय बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, ये जितने के हमारे जो एज बॉलर्स थे, ऑलवेज स्पिनर्स, बट यू केम एज अ फास्ट बॉलर. So how did you change the typical course of Indian style of playing cricket? और मैं एग्रीकल्चर से आया था ना, थोड़ा मेरी बैकग्राउंड में फर्क था। ये सारे कल्चर्ड फैमिली से आए थे। कल्चर्ड फैमिली होता है कि नवाब बनने का शौक है। नवाब कौन है क्रिकेट में? जो बल्लेबाज हो। और जो मजदूर कौन है? जो गेंदबाज होते हैं। तो हमें थोड़ा सा कल्चर बैकग्राउंड ऐसी थी कि हम चैलेंज बड़ा लेना ये सोचते थे हमेशा। शायद वो एक चीज थी जो मैं गेंदबाज बना। बल्कि कल, लेट मी शेयर विद यू क्विकली कपिल, कल हम लोग जब इसके बारे में बात करते, याद साइक्लोन आया था, सो वन ऑफ द कलीग सेड ओवर अ जूम कॉल, इसकी स्पीड वाज लाइक कपिल देव्स बॉलिंग 135 किलोमीटर पर आवर प्लस. सो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. देखो, अच्छी जगह तो लेके आओ, ये बुरी जगह पे मत लेके आओ प्लीज। नहीं. So you're a hurricane. Anyway, Tanvi, why don't you ask some questions? Yes. Thank you so much. And सिर्फ एक चीज जानकारी देने के लिए कि अभी तक हमारे पास 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, and that means a large family, almost 12-14,000 people would be watching us live. काफी सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पार्टनर्स जो डीलर्स हैं उनसे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स से आ रहे हैं, CCNF से आ रहे हैं। तो पहले मैं उनके सवाल कपिल जी आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल हमारे जो बेस्ट स्टॉकिस्ट है, नंबर 1 स्टॉकिस्ट है, उनसे है, SP ट्रेडर्स मिस्टर जादव। और ये वाला जो सवाल वो पूछ रहे हैं ये काफी लोगों ने पूछा है, सो इट्स अ रिपीट क्वेश्चन। डियर सर, व्हाट वाज ऑन योर माइंड एंड व्हाट वाज योर मेंटल balance when you actually played 1983 World Cup against Zimbabwe, when India was 17 for 5 wickets and you finished the match unbeaten, 175 runs in 138 balls. आप जब, और ये जो सिंस बाकियों ने भी ये सवाल पूछा, आई एम जस्ट एडिंग अप दैट व्हाट दे हैव आस्क्ड, दैट जब एक मैच था जो लग रहा था कि हारा हुआ मैच है, आप कैसे आप गए और आप कैसे उसको जितवाए, इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन वांट्स टू नो। तन्वी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बार मैं मैदान में जाता था यही सोचता था मैं आज जिता के लाऊंगा। ऐसा मेरी सोच होती थी और होनी भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप प्लान करते हैं ऐसा होता नहीं है। हम एक ही चीज सोचते हैं, सिखाया जाता है। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हमारी लाइफ में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर कह देते हैं प्लान A, प्लान B, प्लान C। हमारे में कहते हैं देयर इज नो प्लान B, देयर इज ओनली प्लान A। और प्लान A इज हारना नहीं, और उसके लिए जो भी करना है आप करिए। तो मैं पहले भी अक्सर कह चुका हूं कि जिंदगी में ये जो जिंदगी है भगवान ने दी है, ये सारे दिन आपको भगवान ने दिया है, पर कुछ दिन भगवान ने आपको स्पेशल दिया, हर इंसान को। मेरे को नहीं, आपको भी दिए, विवेक जी को भी दिए, बाकी सुनने वालों के कुछ दिन आपके लिए स्पेशल होते हैं, और आपको वो रियलाइज करना वो दिन कौन सा है। जब मैं मैदान के अंदर गया, आफ्टर 15-20 मिनट्स आई रियलाइज टुडे इज माय डे, एंड दैट डे आई रियलाइज कि मेरे को आज कोई बेवकूफी नहीं करनी, संभलना है। क्योंकि जब प्लेयर जाता है वो हर रोज सोचता है मैं 100 बनाऊंगा, लेकिन बनता नहीं है। पर कभी कभी होता है पहली बॉल पे कैच ड्रॉप होता है और आपको पता चलता है कि आज आपका दिन है, आज भगवान भी आपके साथ है। देखो, आराम से रन आउट भी मिस हो रहा था, आप बच गए हो। तो इसलिए कोई पागलपंती नहीं करनी। तो इसलिए वो दिन मैंने रियलाइज किया, टुडे इज माय डे, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग स्टूपिड एंड आई हैव टू बी विद इन माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट इट हैपन। मुझे ज्यादा याद नहीं है 40 साल पहले क्या हुआ, इतना मैं ज्यादा, मेरे को इतना यादगार, मेरी अच्छी होती तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर होता। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए ज्यादा यादें मेरे को रहती नहीं है।
कुछ होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी लिखते हैं और कुछ स्टोरी बनाते हैं। हम स्टोरी बनाने वालों में थे, लिखने या बताने वालों में से नहीं। तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मालूमात नहीं है कि उस समय क्या दिमाग में चल रहा था। आई थिंक वो ब्लिंकर्स डाले थे कि आज बचना है, आज बस बचना है, आज बुरा टाइम चल रहा है, इसको चेंज करना है, बस ऐसी सोच थी उस समय। ये कंटिन्यूएशन में ही ये क्वेश्चन है, ये हमारे ईस्ट बी से, रायपुर से क्वेश्चन है, इमदादी सन्स वहां से क्वेश्चन है कि जब टीम वर्ल्ड कप में गई थी, पहले इनका नाम बताइए, और नाम भी बताइए ना, अच्छा लगेगा। हाँ जी, मिस्टर अब्बास जफर इनका नाम है, इमदादी सन्स, ये रायपुर से है जी। और इनका सवाल है कि ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने आपके बारे में काफी इनफैक्ट लंबा चौड़ा लिखा है, जो अभी टाइम पॉसिटी की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि जब हम गए थे वर्ल्ड कप में, तब हम इतने स्ट्रॉन्ग टीम माने ही नहीं जाते थे, तो आपके मन में कब आया, कैसे आया कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे? आपने टीम को मोटिवेट कैसे किया कि हमें ये जीतना है, और ये कब आपको लगा कि आप लोग जीत सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये था कि जो सीईओ होता है ना कंपनी का, वो थोड़ा पागल होता है और जो कैप्टन टीम का होता है वो भी पागल होता है, क्योंकि टारगेट ऐसे दे देते हैं। कैप्टन भी ऐसा बोलता है कि हाँ हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और पूरी टीम बिलीव ना करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसीलिए आपको कैप्टन बनाते हैं। सीईओ भी ऐसे ही टारगेट देते हैं कंपनी का कि ये चाहिए। लेकिन जब आप वो एज ए कैप्टन सेल्फ बिलीव अपनी टीम में डाल देते हैं, और टीम में सेल्फ बिलीव कैसे जाता है? दो तरीके से जाता है, एक परफॉर्मेंस से, एक मेक देम रियलाइज देयर टैलेंट एंड देयर एबिलिटी। टीम की वो रियलाइज करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक हाफ वे थ्रू दे स्टार्ट बिलीविंग देमसेल्फ एंड वी स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑल्सो, एंड बोथ थिंग्स कम टुगेदर। And I would say after the halfway through of the tournament, I wasn't the captain. Whole team was the captain. Because when they start believing we can do it, then मेरे को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब टीम ठान लेती है and they believe we can do it, then nobody can stop. यही मिस्टर अब्बास भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम थे एज कम्पेयर टू द अदर टीम, लेकिन सबने परफॉर्म किया, सबने अच्छा किया, एंड दैट्स वेयर वी प्रोबेबली वन। तो उनका और एक सवाल ये है कि ये जो पीरियड है जो हम गो थ्रू कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जो बहुतों का सवाल सिमिलर है, that we are going through this lockdown, shutdown, uncertainty, ambiguity, no clarity, sometimes no income, mix of all such feelings, right? How do you keep up your chips high, your morale high? How do you keep yourself going in such a situation? एक चीज सिर्फ कहूंगा, ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में जाऊंगा, कि आप और हम अभी भी जिंदा है, ये पॉजिटिव है। आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों में कितने लोग आए और चले भी गए, कितना दुख होता है। तो आपका पॉजिटिव क्या है? आप अभी भी हैं, हम अभी भी जिंदा हैं, हम गिव अप नहीं करेंगे। हमें वो लड़ने का जज्बा है कि इस प्रॉब्लम से हम लड़ेंगे। या तो लड़ोगे या हाथ छोड़ दोगे, और जब आप हाथ छोड़ोगे तो फिर आप बच नहीं सकते। तो इसलिए ये समय है एक दूसरे की हेल्प करना और ये जज्बा दिखाना। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये जो शब्द बोला है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये ऐसा सेंटेंस दुनिया में आया है कि अच्छे टाइम बोलोगे तो बुरा लगता है, बुरे टाइम बोलोगे तो अच्छा लगा है। जब आपने 100 रन बनाए और कोई बोले ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, यार 100 कर रहा हूं और तुम कह रहे हो गुजर जाएगा, मैं तो नहीं जाने दूंगा। और वही वर्ड आप 0 बनाया है, तो आपको कोई बोले यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपके चेहरे पे शाइन आ जाती है। तो हम ये सोचना चाहिए ये वक्त निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम। हमें अपने आप को संभाल के रखना है, बट कीप थिंकिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव पीपल अचीव ऑलवेज, negative people look for the negative stories. I am a positive man, I look for the positive people, positive story. मैं न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं देखता क्योंकि 90% नेगेटिव न्यूज नजर आती है। I look for the news कि क्या किसने अच्छा किया है, कितना अच्छा लगता है
कि जब एक स्टोरी सुनते हैं कि ये सिख कम्युनिटी ने, गुरुद्वारों ने कितना खाना खिलाया, ये पॉजिटिव है, हमें उनसे ये सीखना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस टाइम इसका फायदा उठाते हैं, तो वो उनका सोच है, पर मेरी सोच है क्या मैं अपने ड्राइवर को, क्या मैं अपने कुक को, क्या अपने ऑफिस के बच्चों को, लोगों को हेल्प कर सकता हूं। ये डिफिकल्ट टाइम है, ये नहीं कि आपको किससे हेल्प लेनी है, आप किसकी हेल्प कर सकते हो, इस सोच में ही ये समय निकल जाएगा और अच्छा समय जरूर आएगा। So, continue में एक question है from South RK Agencies, Mr. Ramesh Garu. His question is that how do you, while you are telling that we need to keep our spirits high, but at the same time, how to keep our spirits high after repeated failures? It doesn't matter, बहुत जीरो बनते हैं पर फिर 100 भी वही बनाता है ना। Come back to the basic. एक मैं बताता हूँ, एक कहानी क्रिकेट की है, क्योंकि ये समय ऐसा है तो क्रिकेट के थोड़े एग्जाम्पल बता सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर शाम को खाना खा रहा है और वो जाके अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा, कहता है कल मैं 100 बनाऊंगा। तो अगले दिन वो 100 बना देता है। तो सब कहते हैं देखा ये टैलेंट होता है, उसने बोला 100 बनाना है, उसने बना दिया 100। पर हमने बोला वो तो हर रोज यही बोलता है, वो तो हर रोज यही बोल के जाता है, पर जिस दिन बन जाते हैं उस दिन वो 4 दोस्त बहुत शोर मचाते हैं। इसलिए आपको भी यही सोचना है कि आज मैं जा रहा हूं, मैं करूंगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, पर हर रोज संडे हो तो मजा नहीं है, हर रोज 0 बने तो भी मजा नहीं है, लेकिन हर रोज 100 बनेगा ना तो भी मजा नहीं है। ये मैं नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा, पर मैं कह रहा हूं ये जिंदगी का दौर है, ऊपर नीचे दिन आते रहते हैं, बट ये समय निकल जाएगा। यू वेट फॉर द राइट टाइम, यू विल बाउंस बैक। ग्रेट पॉइंट। दूसरा Bounce क्वेश्चन back. है बाउंस बैक, या दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर विनोद अग्रवाल से ईस्ट ए से। ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, इन योर क्रिकेटिंग करियर यू हैड चैलेंजेस फॉर सेल्फ, team performance, and above all representing your country. What was your toughest challenge and how did you handle it in your career, and how did you overcome that challenge? देखो, first of all, I want to say there is no challenge. You are playing for your country is the challenge. It's a happy moment. और क्या चाहिए? आप अल्ट्राटेक की कंपनी में काम कर रहे हो, खुश हो, वो सबसे बड़ी बात है। कितने आप जैसे लोग जो इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, नहीं मिलती जॉब उनको, फिर क्या होगा? First of all, you should be happy. You representing your country, playing for the India. When you play for India, all other things are fine. So it's a simple life को रखोगे तो better होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे ट्रांसपोर्ट से मिस्टर महेश गुप्ता। वो कहते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम एंड कूल and motivated always to motivate others? तो आप अपने आप में ऐसा क्या करते हैं जो आप में इतनी पॉजिटिव स्पिरिट और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है? आई थिंक अगेन वो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मेरे को समथिंग अच्छा करना है। ये नहीं है कि आप अपने आप को गाली दोगे तो लगेंगी गाली। किसी ने जापान में एक कहानी है बहुत पुरानी, मैंने पढ़ी थी। जापान में आज से 200 साल पहले पेड़ नहीं काटते होते थे उसको, तो एक पेड़ रास्ते में आता था जो रास्ता उनका ब्लॉक कर रहा था, तो उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, सिर्फ आकर बोलते थे बहुत गंदा पेड़ है, बहुत बुरा पेड़ है, बस उसके ऊपर थूक के चले जाते थे, और 2 साल के बाद वो पेड़ मर गया। तो इसलिए आप पॉजिटिव हमेशा रहो, बोलो कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। अगर आप अपने आप को नेगेटिव कहोगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ सोच पॉजिटिव रखनी है, और वो मैं सोच रखता हूं कि किसी सिचुएशन में भी आ जाऊं, है ना, जिंदगी तो है ना, कोई बात नहीं, करूंगा, करके देखूंगा, फेल होऊंगा, 1 बार होऊंगा, 2 बार होऊंगा। तो जब मैं इंडिया के लिए खेला तो ये अलग सी कहानी है। तो किसी ने बोला
कि कपिल देव को कैप्टन बना दो। मुझे स्टोरी बाद में पता चली, कहते उसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो मैंने वो अक्सर ये कहानियों में बताई है, हेलो मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, मेरे को क्रिकेट के लिए कैप्टन बनाना है या इंग्लिश के लिए बनाना है? इंग्लिश के लिए कैप्टन बनाना है तो ऑक्सफोर्ड से किसी को पकड़ के लाओ, उसको इंग्लिश बोलने तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो आप जो हैं, आपकी कंपनी में काम करते हैं लोग, वो माहिर किस चीज में है, वो जिस चीज में माहिर है उसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं बोलने में माहिर है, गुड मॉर्निंग सर, उसको प्रमोशन दे दी, नहीं, रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट विल गिव यू द प्रमोशन, रिजल्ट विल गिव यू द कैप्टनसी, नॉट एनीथिंग एल्स। That's true. अभी वैसे भी प्रमोशन का सीजन ही चल रहा है। क्यों नहीं, जो अच्छे लोग करेंगे, काम करेंगे इस डिफिकल्ट टाइम में, उनका पता चलेगा, कैरेक्टर सामने आएगा। करेक्ट, दैट्स ट्रू। दूसरा सवाल है सेंट्रल जोन से केजीएन एंटरप्राइज मिस्टर अशर अली बस्ती यूपी से। वो कहते हैं कि चैंपियन बनने का क्या फॉर्मूला है? हाउ डू यू बिकम अ चैंपियन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू यू लीड अ टीम जो अलग अलग लोगों से बनती है और अलग अलग चीजें लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करती है? तो एज अ कैप्टन आप अपनी पूरी टीम को हर समय मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? आई थिंक कप्तान की सबसे बड़ी है कि किसी जो प्लेयर है, जो आपका टीम का मेंबर है, एज ए अगर आप किसी 10 लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट कौन से प्लेयर में कौन सी एबिलिटी ज्यादा है, उस एबिलिटी को पकड़ने की कोशिश करो। और मैं अक्सर टीम में यही होता था, जब भी मैं इज्जत देता था प्लेयरों को या किसी को कुछ बोलता था, मैं सबके सामने बोलता था, बहुत इज्जत देता था। और हमें इज्जत और प्यार खुल के देना चाहिए, अक्सर हम देते नहीं है। लेकिन जब आपको गुस्सा करना है, उसको कमरे में बुलाओ और बोलो कि आई एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू देन व्हाट यू आर गिविंग। सो सबके सामने बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है, सबके सामने इज्जत और प्यार करना बहुत अच्छी बात है। ये मैंने क्रिकेट से सीखा। सो मैं जब भी कभी किसी को डांटना या कुछ कहना होता था जिससे मैं अपसेट होता था, तो मैं उसको अकेले में आके बोलता था, पब्लिक में नहीं बोलता था। अक्सर हमारे लोगों में ये है कि आप बॉस बन जाते हो और सबके सामने बेइज्जती करना बड़ा आसान समझते हो। तो मैं कहता था नहीं, आपको टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए जिस आदमी का वो वीक पॉइंट है, उसको आप पकड़ो और उसको अलग में इंप्रूव करो, तो आप जाके लीडर या कैप्टन बन सकते हो। ये अगला सवाल संदीप गुप्ता ईटा यूपी से है। इनका भी वही सवाल है, बट सिंस ये सवाल बार बार आ रहा है कपिल, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन दैट ये वापस कह रहे हैं कि ये जो माहौल है, इसमें जो जितनी नकारात्मकता है, अनिश्चित पन है, तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि हम भी शायद पॉजिटिव चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने अंदर से हम नेगेटिविटी को कैसे हटाएं और चीजों को पॉजिटिवली कैसे देखें? I know आप आंसर कर चुके to an extent, but I'm still asking because it's still coming. No, I think it's a very common thing because the way the world is moving, we are all looking for the negative news, negative news, negative. Can you be positive? Look for the people around you who talk positive, who can think positive. Negative तो बड़ा आसान है, किसी को मारना थप्पड़ तो क्या है, क्या किसी को खाना खिला सकते हो आप? आई थिंक अपने आप को चेंज करना है, हमें किसी को नहीं चेंज करना। जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हो तो आपके सारे आसपास पे लोग चेंज नजर आते हैं। आप अपने आप से प्यार करना सीखो, ये मैं सबसे कहता हूँ। शीशे में खड़ा होके बोलो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छे काम करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने से प्यार नहीं करते तो दूसरों से प्यार कैसे कर पाओगे? प्लीज लव योरसेल्फ, enjoy yourself and then you can enjoy everybody around you. अगर आप नाखुश अंदर से हैं तो दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं? करेक्ट, करेक्ट। एक सवाल है जो नवीन भट्टर जी का सवाल है कि आप में बहुत बदलाव आया है जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया था, जैसे आप कह रहे हैं तब से अब तक, जो विवेक भी पहले आपसे शायद पूछ रहे हैं कि अभी आप काफी स्टाइलिश और डैशिंग हो गए हैं, and you know, you have changed a lot. So how have you changed and what is your mantra of this being a style icon now?
Tanvi, were you the same 15 years back? Actually, no. So why they expect me I should be remain? What happened? The problem is when मैं 20 साल का इन्होंने मुझे देखा तो they expect me I should be the same. Over the period of time, you start graduating yourself. भाई आप सीखते हो, आप दुनिया को देखते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छी चीजें की तरफ जाते हो. तो अगर आप नहीं सीखते तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है. यहाँ पर मैं एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ. किसी ने पूछा आपका हीरो कौन है? मैंने कहा मेरा हीरो तो हर बार चेंज होता रहता है. कहते वो कैसे? मैंने कहा स्कूल में मेरा हेड बॉय मेरा हीरो था, क्योंकि वो सब काम कर लेता था. जब थोड़ा बड़े हुए तो मेरा ब्रदर, माय बिग ब्रदर वाज माय हीरो, बिकॉज जो भी मैं उनको काम कहता था वो कर लेता था, मैं नहीं कर पाता था. देन आई वेंट टू ट्रैवल इन द स्टेट. मेरा स्टेट का जो क्रिकेट का कैप्टन था, मैं कहता यार देखो कितना बढ़िया है, इसको सब कुछ पता है. सो उसको नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही थी. उसके बाद स्टेट से मैं इंडिया पहुंचा तो मेरी विजन बड़ी होती गई. इंडिया से मैं वर्ल्ड देखा तो और बड़ी होती गई. तो मेरे हीरो चेंज होते गए दिन ब दिन, क्योंकि मैं बेटर से बेटर लोगों की तरफ देख रहा था. तो अगर आप सोचो कि वही मैं रह जाऊं जो मैं स्कूल में था या 20 साल पहले जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ खत्म हो गई है. मेरे को सीखने का आप मौका नहीं दे रहे. तो मैंने ये जिंदगी में सीखा था, मेरे को हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना है. शायद ये इंटरव्यू जब खत्म होगी, ये चैट खत्म होगी, तो मैं बहुत कुछ और सीख के जाऊंगा आप सबसे. दूसरा सवाल एक है जिसमें नाम नहीं लिखा है, बट वो कहते हैं कि कंपटीशन, आई एम श्योर आपके टाइम पे भी काफी कंपटीशन था, आजकल तो कंपटीशन और ज्यादा फियर्स हो गया है. And because of this competition, sometimes, that derails us, makes us angry if we are not winning. And we always feel that when you're in competition, you should be winning always. So what's your thought on how should you take competition in life? अगर मैं थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं ना, मैं बहुत गौर से देखता हूं पिक्चरें. मेरी जिंदगी की पिक्चर अगर कोई बोले ना, वो 3 इडियट्स है. अगर आपने देखी या किसी ने देखी है, कि आप काम में एंजॉय करो जो करना चाहते हो, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा. आई थिंक इन सब लोगों को पहली सीढ़ी पे नहीं जाना, 10वीं सीढ़ी पे जाना है. मेहनत तो करो 10th स्टेयरकेस तक पहुंचते हुए. तो आप 10th स्टेप तक तभी पहुंचोगे अगर 2nd, 3rd, 4th, 5th करोगे. आज बच्चे आते हैं हमारे पास, हमें क्रिकेट सिखा दो, इंडिया के लिए खेलना है. अरे बाबा, पहले गली के लिए तो खेल लो, पहले स्कूल के लिए तो खेलो, पहले स्टेट के लिए तो खेलो, जोन के लिए तो खेलो, फिर इंडिया में खेलोगे. बट नहीं, इसको आईपीएल खिला दो. मैंने कहा अगर मैं इसको आईपीएल खिला सकता तो मेरे सारे घर वाले खेलते. सो आई थिंक हर इंसान को ये सोचना है और देखना है कि हम किस में कितनी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं. वो बहुत जरूरी है. हम भूल जाते हैं, हम सीधा ये सोचते हैं कि फाइनल का देखते हैं. फाइनल का मत देखो. वर्क फॉर दैट वेरी डे एंड गिव योर 100%. कंपटीशन से क्या डरना? क्या कंपटीशन में आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, वो देखना है. एक क्वेश्चन है पीयूष फ्रॉम साउथ जोन. ही सेज हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड कीप हेल्दी? ये स्ट्रेस जो वर्ड है ना, ये मैंने बहुत जिंदगी में लेट समझा कि स्ट्रेस क्या है. हम तो कहते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है बाबा, हमें तो पता ही नहीं. क्योंकि जब आप एंजॉय कर रहे हो तो स्ट्रेस तो हो नहीं सकता, कतई भी नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता. स्ट्रेस तब होता है जब आप उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे. जब किसी काम को आप एंजॉय कर रहे हो ना, शाम को आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाना है, वो स्ट्रेस तो हो नहीं सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता. ये और दूसरा ये है कि आजकल बहुत कहते हैं कि बहुत प्रेशर है. मैंने कहा मैं ये सोचता रहता हूँ किस चीज का प्रेशर है. भगवान ने जिंदगी दी है और इतनी अच्छी जिंदगी दी है, फिर प्रेशर है. ये प्लेजर और प्रेशर में हमें थोड़ा सा फर्क लाना होता है. ये कहते हैं प्रेशर है, मैं कहता हूं प्लेजर है.
क्योंकि मुझे तो मजा नजर आ रहा है, आपको प्रेशर नजर आ रहा है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको प्रेशर लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैंने एंजॉय किया हुआ है पढ़ाई, तो मेरे को मजा आ रहा है। जब टेस्ट मैच होता था मेरे को तो मजा था। और वो कहते नहीं बहुत प्रेशर है तो मत खेलो भाई, इंडिया के लिए खेल रहे हो, ये प्रेशर है, प्लेजर है। ये थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वर्ड बहुत आजकल कॉमन है, ये अमेरिकन ना बहुत स्मार्ट है, ऐसे ऐसे वर्ड दे देते हैं, डिप्रेशन। कि डिप्रेशन क्या है भाई? हमने तो डिप्रेशन कभी देखा ही नहीं। डिप्रेशन तब होता है जब आप अकेले होते हो, हम तो कभी अकेले हुए ही नहीं। तो जॉइंट फैमिली का ये मजा होता था कि आपको डिप्रेशन नहीं होता। सिंगल फैमिली वालों को डिप्रेशन होता है कि बात ही नहीं करने को मिलती। सीईओ को डिप्रेशन हो सकता है कि वो कमरे में अकेला कांच की बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं कर पाता। जो 7-8 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं उनको डिप्रेशन कैसे होगा? एक दूसरा आके चाय कॉफी पूछ रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई काम कर रहा है, तो डिप्रेशन कैसे हो सकता है? ये थॉट प्रोसेस है which we have to change. True, that's true. Another question comes from Abhay Tomar, North Zone, and he has a question where he says कि कभी-कभी लाइफ में हम डायरेक्शन लूज कर देते हैं. We are going on a track, we think we are going on a track, after some time we realize that we have lost the track, right? And how do you get back to winning track? Because सब लोग कभी ना कभी विनर्स थे, बट ये जब ट्रैक लूज कर देते तब वापस कैसे आए? आई थिंक तन्वी, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये मेरे को सिर्फ ये लगता है कि ये एंजॉय नहीं कर रहे। आई थिंक आप सबको एक ही चीज मैं कहूंगा कि आप जो भी, तन्वी, आर यू एंजॉयिंग टॉकिंग टू मी और नॉट? विवेक जी, आर यू एंजॉयिंग और नॉट? आर यू एंजॉयिंग और? Absolutely. एंजॉयिंग, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया ना। अगर आप ये सोचो यार आज ये इंटरव्यू है, इसका प्रेशर है, ये है, तो नहीं, बोलो आज इंटरव्यू है, बहुत मजा आएगा यार, लेट्स वर्क। सो हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग, आप अपनी थिंकिंग चेंज करो। खाना खाते हुए चेंज करो कि यार खाने में बहुत मजा है, चाय पीते हुए बहुत मजा है। पहले चाय पीने से आप उसकी गलती निकाल दो, क्या कलर है चाय का, यार एक सिप तो लो, मजा तो लो, खाना खाओ, उसको एंजॉय तो करो। बट हम एंजॉय करना भूल गए या प्रेशर लेना शुरू कर दिया है। नहीं, दैट्स ट्रू। पर अभी आई थिंक जैसा माहौल है उसके वजह से शायद हम प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं और एंजॉयमेंट करना थोड़ा शायद भूल गए हैं। ठीक है, ये समय आएगा, वो जो हमने पहले बोला है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना, हम कहते हैं संभल के निकाल दो, ये निकाल दो, ये मुश्किल समय है, निकाल दो, निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा। बट सारी उम्र ये नहीं हो सकता कि वही 100 बने हर रोज, और सारी उम्र ये भी नहीं होता कि 0 बने। ये निकल जाएगा समय। जब आपके 0 बन रहे होते हैं, बेसिक पे चले जाओ, प्रैक्टिस करो, नेट में खूब प्रैक्टिस करो, रन बनने शुरू हो जाए। एक क्वेश्चन है मिस्टर करुणानिधि सिन्हा का ईस्ट जोन से, और आई थिंक ये बहुतों के साथ हुआ है कि एवरीवन हैज लॉस्ट समवन इन दिस पैंडेमिक, जिनके मे बी अ फैमिली मेंबर, मे बी अ क्लोज फ्रेंड, and sometimes to get over that loss because it was so untimely and sudden is derailing those people जिनके साथ ये हुआ है, और वो उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और शायद बिकॉज जैसे आपने राइटली बोला कपिल कि हम लोगों से मिल भी नहीं पा रहे हैं, अपने आप ही घर में अकेले हैं, तो शायद दैट इज ऑल्सो एडिंग अप टू फीलिंग अ लिटिल लो इन लाइफ। सो हाउ डू यू ओवरकम लॉस ऑफ समवन? देखिए, जो चला गया उसके बारे में आप सिर्फ अच्छी बातें याद रखो कि यार ये हुआ था। मेरे को बहुत है कि कईयों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कईयों को कुछ हॉस्पिटल नहीं मिला, यही कह सकते हैं वो चले गए। आप उनके लिए, जिन्होंने जाना है वो चले गए, आप अपने आप की सेहत खराब मत करो। मैं बताता हूँ कि माय फादर इन लॉ डाइड वेरी यंग, एंड उनके जो मेरे फादर इन लॉ के फादर इन लॉ थे वो जिंदा थे, उनके सामने उनका यंग सन इन लॉ की डेथ हो गई।
and he was 80 odd years old, and वो दोपहर को बड़ा अफसोस मनाते थे, आजकल जैसे अफसोस मनाते हैं. एंड वाइज मैन क्या होता है, वो उठा दोपहर को, कहता मैं आप सबको कहूंगा जाओ आराम करो, जिसने जाना था वो चला गया, हम उसकी अच्छी यादें रखेंगे, पर उनके कारण हम ना चले जाए, ये ध्यान रखना. कितना अच्छा उन्होंने बोला कि जरूर आपको अफसोस हुआ है, हमें अफसोस होगा, आप सबको हुआ है, पर जो जाने वाला था वो वापस आने वाला नहीं है. पर उसके कारण आप अपनी सेहत खराब मत करो, अपने आप को लुक आफ्टर करो. जब हम बैठेंगे उनकी अच्छी बातें याद करेंगे, और वही जिंदगी है, क्योंकि सबने आना है और सबने जाना है. किसी को मालूम नहीं कब आना है और किसी को मालूम नहीं कब जाना है, लेकिन ये जो सफर है ना, इसको अच्छी चीजों को याद रखो. मैं मानता हूं कि बहुत लोगों के आसपास के लोग इस तरह चले गए हैं कि वो उनका जाने का मतलब नहीं था. किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला, शायद डेस्टिनी में ये लिखा था. पर कैन वी एज पर्सन की हेल्प किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो, इफ वी कैन हेल्प दैट, कम आउट ऑफ दैट. अगर आप अपने उसमें घुस जाओगे कि नेगेटिव थॉट में, तो फिर आप अपने आप को अनहेल्दी पाओगे. नो, डोंट बिहेव लाइक दैट. जिससे चला गया ना, माय मॉम गॉन एंड आई क्राइड, बट शी इज गॉन ना. But let me remember the good things about her. वो कैसे खाना खिलाती थी, कैसे डांटती थी. So only thing we can enjoy is to remember her good things. Correct. और मैं तमाम लोगों को कहूँगा, बहुत सहानुभूति है हमें. I feel very touched by people who are gone, where we could, as a country, could save them. They are gone, but now they are gone. Let's hope next person shouldn't go the way some of the people is gone. Correct. Very true. Very true. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर. I mean, that's very, very right way of, and that's a real positive way of looking at life. Thank you so much, Kapil, for this. Yeah, Tanvi. एक अच्छा क्वेश्चन आया है JR मोहंती लखनऊ से. वो पूछते हैं, his question is that what is role of a coach, because today all of us are coach in some form, either to your team or to somebody else. We are all playing a role of a coach. So how can we be a good coach? पहले तो मैं ये कोच की डेफिनेशन चेंज कर देता हूं. क्रिकेट में कोई कोच नहीं है. मेरा कोच था जो मेरे को फास्ट बॉलिंग बताता होता था. आज रवि शास्त्री मैनेजर है, मैनेज द टीम, नॉट कोचिंग. वो फास्ट बॉलर को कोचिंग नहीं दे सकता, वो विकेट कीपर को कोचिंग नहीं दे सकता. उनको मैनेज करके उनका मनोबल बढ़ा सकता है. गिव देम द करेज. सो ये अमेरिकन वर्ड है कोच, कोच, कोच. देयर इज नथिंग कॉल्ड कोच. कोच इज दैट जिससे हमने बचपन में सीखा था. और ये कौन है? ये मैनेजर है जो हमें मैनेज कर रहे हैं. इन ए टीम, इन ए ग्रुप, we can perform better. So there is difference between coach and manager. I don't know if I can explain better than that, but everybody have to understand this is American word, coach. How can a Ravi Shastri can tell a wicket keeper who is one of the best कि मैं इसको, उसको वो और बता सकता है, जोश दे सकता है. अब विराट कोहली को आप कहोगे कि रवि शास्त्री जाके कोचिंग देगा? नहीं. उसको बता सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि हाँ, यू कैन डू बेटर, यू आर प्लेइंग वेल, डोंट लूज हार्ट. ये मैनेजर का जॉब है. मैन मैनेजमेंट को आज हम कोच कहते हैं. मैं नहीं मानता. मेरा कोई कोच नहीं था apart from my coach where I learned my bowling. The people who come with me and as a manager, they used to manage me कि मुझे बॉलें चाहिए, मेरे को प्रैक्टिस करनी है. They used to do manage. And जब मैं I am down, not run बन रहे हैं, then I need a manager कि he will give me the pep talk and come on, you can do better than that. That's what is the job. So captain, coach और manager में ये फर्क है. एक क्वेश्चन है, आई थिंक 2 लोगों ने पूछा है. भास्कर गुप्ता, साक्षी एसोसिएट्स लखनऊ, एंड हेमंत सिंघवी, साउथ जोन. उनका क्वेश्चन है कि व्हेन यू आर सच अ बिग अचीवर, हाउ डू यू
still remain so humble and grounded? Many a times we see कि अगर बहुत सक्सेस और अचीवमेंट आ जाती है तो साथ साथ शायद एरोगेंस भी आ जाता है. Oh, I'm a good actor. और क्या ये I don't know, a lot of people said you're humble. What humble, Baba? This is God given me the talent. God given you talent to talk. That doesn't mean you become arrogant. It's a God ने मेरे को sports में थोड़ा सा talent दिया है. I played, I enjoyed that. Doesn't mean I should be arrogant. This is the nature, the way you are. But I think it's the people forget that achieving something should not change your thought process in life. And that should remain, the basic should be remain the basic. If you change, you're changing your character, which is not going to take you very far. Correct. And the continuity question is that what do you think are 3 essential qualities of a good leader? Only one quality is good enough. One quality, not 3. ज़्यादा चीज़ें नहीं, एक-एक काम करना सीखो. Be honest with yourself and honest with your team. And अगर बड़ा player भी है, अगर उसको drop करना है, be honest. Don't try to say इसको तो मैं सिखाऊंगा एक दिन. No, be honest. Honesty will give you in long run respect, love and everything. They used to tell me कहते यार ये थोड़ा सा आया पंजाब से आया है, चंडीगढ़ से, थोड़ा सा पागल है. तो मैंने कहा मानते हो ना पागल है, खत्म हो गई बात. So आप अपने आप को बोलो कि नहीं, कोई बात नहीं, this is me. You don't have to change your character. और अक्सर कहा जाता है a duplicate cannot be better than original. And be original. And I don't want to be a copy anybody. कॉपी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ओरिजिनल ही सबसे होगा ना. So I used to say, this is me, take me or drop me. Why you want to change my character? True. एक और क्वेश्चन है यहाँ पे नॉर्थ जोन से ज्योति अरोरा का. वो पूछते हैं कि आप क्रिकेट खेलते थे, अब आप बहुत अच्छा गोल्फ भी खेलते हैं और आप नई नई चीजें सीखते रहते हैं और करते रहते हैं. और लर्निंग एजिलिटी with age, people say that it reduces. So how is it that you are learning always these new things, and how should we also keep learning new things at any age? मैं क्रिकेट खेला, यकीनन बहुत एंजॉय किया, देश के लिए खेला, बहुत अच्छा लगा. लेकिन अगर मेरे को 10 जिंदगी भी मिले ना, मैं सब कुछ नहीं कर सकता. तो इसलिए जितनी मेरे को जिंदगी है, कुछ लोग आते हैं सिर्फ वो वही करना जानते हैं. जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, रवि शास्त्री है, सुनील गावस्कर है, रिची बेनो है, certain people come out, they, बिशन सिंह बेदी, वो किस लिए बने हैं? वो क्रिकेट के लिए ही बने हैं. वो क्रिकेट खेले, क्रिकेट की बात की और क्रिकेट के साथ सो गए. उनको और कुछ नहीं करना जिंदगी में. और मैं कहता हूं यार, जिंदगी में तो बहुत कुछ देखने को है. जब मैं क्रिकेट खेला तो कितनी चीजें मैंने मिस की. नाइट क्लब नहीं जाना, आंखें खराब हो जाएंगी. मेरे को हॉर्स राइडिंग नहीं करना, चोट लग जाएगी. मैं टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलूंगा? गोइंग इनटू द माउंटेन, ऑल दोस थिंग्स. तो आप 2 तरह के लोग हैं. एक जो आपने करना है बस वो एक पटरी पे, सीधी पटरी पे चलते जाओ. मेरे को मजा आता था यार, बहुत चीजें हैं, जंगल में चलते हैं, वहां जिंदगी देखते हैं, वो की क्या जिंदगी होती है. सो एवरीबडी इज डिफरेंट. आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन लाइक दैट, only cricket and cricket and cricket. That's why I keep on learning. I want to know about politics. I want to know about different things in this world, what's happening, how the world is changing. And that's what my aim is all about. क्योंकि मेरे को 10 जिंदगी भी मिल जाए, मैं सब कुछ नहीं देख सकता और पा सकता और जान सकता. More you educate, more illiterate you become, because more you come to know about the world, more you come to know how much you don't know nothing about the world. Oh, well said. एक क्वेश्चन है that we have become a country which believes in capturing the memories rather than creating memories. आजकल इतना सारा हमको बस रिकॉर्ड करने की, हमेशा हम रिकॉर्ड करते रहते हैं. हम
खुद memories, I mean, there are masses who prefers capturing, but themselves they are not creating memories. And you have been the one who have created a memory that I think will remain forever, because आपका, and what the person has said is very right, that आपने जब वर्ल्ड कप जीता, आप दूसरी कंट्री में गए, एक चैंपियन जो काफी सालों से थे उनको हराया, अनलाइक 2011 which was also a big success, but हमने होम टर्फ पे उनको हराया, आपने बाहर जाके हराया. तो आपकी जो मेमोरी आपने क्रिएट की थी उसको वापस रिक्रिएट करने में भी हमें इतने साल लग गए. कोई बात नहीं, लगे तो सही ना. आया तो सही ना. ये नहीं है, देखो अगर आप ये कहें कि बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, सब कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन आपका एम तो होना चाहिए ना, हौसले बुलंद होने चाहिए. रेस्ट एवरीथिंग इज ओके. एंड सब कुछ नहीं पा सकते जिंदगी में, पर जितना पाते हैं उसका मजा तो ले लो आप. So just my last two questions, Kapil. आपकी मूवी आ रही है 83, which should be, I mean, I don't know when it will release, but at least. एक मिनट, मैं आपको यहाँ टोक देता हूँ क्योंकि मैं रोकना नहीं चाहता किसी औरत को भी. मेरी मूवी नहीं आ रही, ये मेरी टीम की मूवी आ रही है 83. Okay, 83. Very well said. Please, वो मेरी टीम क्या कहेगी यार, इसकी मूवी है ना, ये हमारी सबकी मूवी है 83 टीम की. सो रिमेम्बर, अगर आपकी भी आज अल्ट्राटेक का हो रहा है तो आपका नहीं है, पूरी कंपनी की बात हो रही है. तो इसलिए ओनर्स की बात नहीं है. मैं कैप्टन था पर मेरी मूवी नहीं है. अब पूछ लीजिए प्रश्न. तो विनिंग टीम की मूवी आ रही है हमारे लिए, फर्स्ट वर्ल्ड कप जर्नी ऑफ 1983 टीम की मूवी आ रही है. तो ये मूवी जो आ रही है आपको कैसा लग रहा है? डू यू थिंक, जो सवाल आया है वो पूछ रहे हैं, डू यू थिंक ये मूवी पहले बन जानी चाहिए थी, बहुत लेट बन रही है? 10 साल के बाद बननी चाहिए थी. वो इसलिए मैं अभी भी सोचता हूँ यार, मैं बहुत यंग हूँ, हमारी पूरी टीम के बारे में क्या, जैसे भाग मिल्खा भाग की बनी थी उसके 60 साल के बाद बनी थी. तो मैं ये कहता हूँ कि अभी बहुत जल्दी बन गई, शायद थोड़ा और समय निकलता, लेकिन कुछ लोगों का हमारी टीम में था, नहीं क्यों नहीं बन रही है तो ठीक है. सो आपको टीम के साथ चलना पड़ता है. इफ होल टीम थिंक ठीक है तो ठीक है. सो एक क्वेश्चन इस पे, तन्वी, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. कपिल जी, मुझे इस पे ध्यान आया, समवेयर समवन सेड कि जब जो बॉलर हुआ करता है, सो आप उसको अलाउ करते थे डिसाइड करने के लिए कौन कहाँ खड़ा होगा मोटे मोटे तौर पे, whereas you being a captain, is that true? Absolutely. If Vivek, you are the head of that. जिसने बाहर जाके सीमेंट बेचना है, जो उसको पता है कैसे टीम सीमेंट बेचना, आपको नहीं पता होगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. पता नहीं क्या क्या सोच के जाता है, बात कैसे कैसे लोग मिलते हैं. इसलिए जो बॉलर है वो प्लान कर रहा है ना, मैं इसको आउट कैसे करूंगा, मैं उसके दिमाग में कैसे घुस जाऊं, वो मेरे को बताएगा कि एज ए प्लेयर मैं ये करना चाहता हूं. फिर हम डिस्कस करते हैं, देख लो ये शायद ऐसा करो तो बेहतर होगा. लेकिन एंड ऑफ द डे बॉलर हैव टू सेट हिज टीम. अगर आपने किसी एक लड़के को बोला कि आपने ऑर्डर लेने जाना है, पर आप उसको गाइड कर रहे हो, तो फिर आप ही चले जाओ ना, फिर उसको क्यों भेजते हो आप उसको ऑर्डर लेने के लिए. सो दे हैव टू लर्न, दे हैव टू डू देयर जॉब. In a team, everybody have to do their own job. But what happened, sometime as a captain, you feel you are doing everything. It's wrong, absolutely wrong. जब अश्विन बॉल कर रहा है तो विराट कोहली उसको सिर्फ बता सकता है, यार ये करोगे तो हम शायद बेटर होगा. बट अश्विन बोलेगा नहीं, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, 2 फील्डर इधर रख के एक इधर रख के मैं ये बॉल करना चाहता हूँ. आखिर में इवेंचुअली अश्विन ने बॉल करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Absolutely. So that's a great example of an empowerment from the sports to the corporate world. तन्वी, आपने कॉफी भेज दी है, थैंक यू. The last question from our side, Kapil, is that, and अभी आपको काफी सारे families देख रही हैं जिसमें you know there are spouses, there are kids. हेलो, मेरे को फोटो भी लेनी है आप सबके साथ. Right, immediately after the question. हाँ, ये ना हो कि आप टाइम इसमें निकाल दो और सबके साथ मैं फोटो ना ले सकूं. नहीं, after this we will have a selfie moment.
So the question is, what role did your wife and your children play in your this such a fantabulous journey that you had, Kapil? I think we kept it very simple कि क्रिकेट खेलना मेरा काम है, वो मेरा ऑफिस है, उसके बारे में आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और घर के बारे में मैं जाके क्रिकेट ग्राउंड में चर्चा नहीं करूंगा कि आज सब्जी ये बनाई है, रोटी ये बनाई है. तो इट्स अ वेरी सिंपल. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. मैं टेस्ट मैच खेल रहा था चेन्नई में, तो वो कभी कभी आती थी मैच देखने, तो उसको मैच में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. वो ठीक है, शाम को पहुंचा, कहते क्या हुआ? मैंने कहा ठीक था, अच्छा नहीं हुआ. कहते क्या हुआ? मैंने कहा 0 बनाया. तो शी सेड ओके डोंट वरी, नेक्स्ट डे. तो शाम को 2-4 फोन आए, सेड वेल डन. आई सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड शी ओवरहर्ड दैट. उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे. तो कहते क्या हुआ, थैंक यू बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैंने 49 रन बनाए. तो कहते 50 भी नहीं बने. मैंने कहा 49 इज बेटर देन 48. आई सेड 49 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए इट वाज ऑल द पीपल अंडरस्टैंड. जब आपकी टीम 100 में आउट हो जाए, 49 इज अ गुड टोटल. उसने बोला ठीक है ठीक है. इतनी देर में हम होटल में रहते होते थे, कभी कमरे में खाना नहीं खाया. तो हम रेस्टोरेंट में गए, तो उस समय इतना देते थे कि फैमिली के साथ है तो आके वेटर भी बोलता है वेल प्लेट सर, वेल प्लेट, चले जाते थे. पर लोग ज्यादा आके घेरते नहीं थे होटल में जहां आप रहते हो. एंड शी सेड इतना ज्यादा था. मैंने कहा बहुत मुश्किल था. तो मैंने रन बनाए 49. रात को जब मैं वापस खाना खा के कमरे में पहुंचे तो केक पड़ा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड शी सेड 49 में भी केक भेजना शुरू कर दिया होटल वालों ने. मैंने कहा अब आपको क्या बताऊं, इम्पोर्टेंट था 49, इसलिए जान बचाई. तो शायद उनको इम्पोर्टेंट लगा होगा. ठीक है, चले गए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग न्यूज़पेपर में उसने देखा आई मेड 100. शी सेड यू मेड 100. आई सेड सो. शी सेड व्हाई डिडंट यू टेल मी? आई सेड कोई खाने का टेस्ट फर्क हो जाना था. That's outstanding. भाई कोई खाने का चेंज नहीं होना था. हाँ बन गया ना, देख लिया ना. ओनली थिंग आई वांट टू से, आज कोई आईपीएल में भी 50 रन बनाता है ना, 7 जनरेशन को पता चल जाता है उसने 50 बनाए हैं. हमारी वाइफ को अगले दिन पता चला न्यूज़पेपर से कि हाँ इसने 100 बनाया है. दोस टाइप ऑफ डिस्टेंस वी केप्ट. काम काम के लिए, ऑफिस ऑफिस के लिए. वाइफ शुड नॉट गेट इन्वॉल्व टू मच इन द ऑफिस, नाइदर the husband should get too much involved in the home when wife is looking after the home. So nice. I'm sure So- all people who are listening would be feeling so happy. So I think Kapil, तन्वी मुझे इस पे ध्यान आ रहा है अभी इस लॉकडाउन के दौरान most of the people are at home. So I think it's a polite advice and warning from Kapil कि भाई leave your families cooking at home comfortably, don't interfere. अगर मेरी वाइफ बोलती है ना प्याज काट दो यार, खत्म है. अब बनाना थोड़ा कि उसको बता रहे हो इसमें और नमक डालो, ये डालो. अरे ये उसका जॉब है भाई, तुम उसको करने दो. क्या है कि आजकल हम थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है ना, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर दूं. नहीं भाई, तुम सक्सेसफुल ऑफिस में हो, घर में नहीं हो. घर में वाइफ को ही रहने दो. Thank Good you. one. Thank you so much, Kapil. I think we really enjoyed the conversations with you, and I'm getting a lot of messages about your simplicity. I think people are really so happy listening to your simple, profound thoughts that people are so glued on, and then they are like, "Oh, it's already 6:30." I'm like, "Yeah, it's 6:30. We need to." wind No, you want me to be Shashi Tharoor? I can come No, out no, and no. to say. So there is no. You want to make life simple? Make it simple. Yeah, so I think that's exactly what people are appreciating. And as you rightly said, I think all people wanted to have a selfie with you, as we all like. So maybe Vivek and you, both of you, can be on screens posing or whatever you would like to have a selfie. No, I think Tanvi, be there. Let's have a selfie all together. पहले मैं सेल्फी ले लूं. ठीक है. So all others who are watching the show can also probably take in the selfie with all of us. I think it's a good memory that we can have. And Kapil had said that there is a beautiful song that he wanted to dedicate to all of you, and he'd asked us to keep it ready. So Kapil, whenever you want, I'll play that song.
हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी का एक जो सॉन्ग है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे शो होने से पहले, वो ये था, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। इससे बेहतर और कौन सा गाना हो सकता है। हम क्रिकेट मैदान में उतरते थे, हम कहते थे जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। आज नहीं ये कहते क्योंकि हमारे चेंज हो गया स्टेप, बट दैट्स हाउ वी यूज्ड टू बिलीव दैट कि ये मैदान है, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। और सेम जो आपकी कंपनी के लोग करते हैं, उनका भी होना चाहिए कि आप जब ऑफिस में आते हो, जीना यहाँ मरना से यहाँ इसके सिवा और कोई लाइफ नहीं है। बट अगर आपकी जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। So we could just have that song also, please, while we take the selfie. है जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। Thank you so much, Thank you Kapil. all. I Beautiful. think it was such an energizing session, and we are feeling so powerful. I think I must say the word is powerful. There is some adrenal rush to do something, I guess, right now. It has been so much full of positivity, and really appreciate. And one quote I would like to quote what exactly you only said to everybody. So when we were talking to Kapil about this session, and we told him that we have all been locked up in the house, and it's so difficult and all of this, he says it's just like Big Brother or Big Boss, right? But at least you're locked up with the people you like. So that's how it is. So he always looks positive in the things that we probably speak on. So thank you so much, Kapil. I think we really appreciate, and we are so glad that we had you. Really very, very glad. Love you all. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Kapil. Thank you.